Hello everyone, myself Yogendra Pathak, PGT Bio, Jawahar Navodaya Vidyalaya. Welcome to all of you in this class. Today we are going to discuss the chapter number 5 of class 12th, that is genetics. Before going into deep, we will go to the basic terminologies. These are, the first one is genetics, offspring, siblings, twins, characters, trait, factor, alleles, gene locus, and many more are there. We will go one by one. The first one is genetics. The term genetics was given by Bateson. Bateson in 1905. Bateson is also known as they are regarded as father of animal genetics. Father of animal genetics. One thing you should be very clear, that Bateson is known for father of animal genetics, not for genetics. The father of genetics is John Mendel, Gregor John Mendel Sahab. Genetics, what is genetics? Genetics is the branch of biology that deals with the heredity and variation. I repeat, genetics is the branch of biology that deals with the heredity and variation. Heredity and variation. Okay. What is heredity? It is the transfer of characters from one generation to next. And what is variation? Variation is the offsprings when it is the not same as of parents. That is called as variation. आप ये कह सकते हैं कि वेरिएशन अगर है तो जेनेटिक्स है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं है तो जेनेटिक्स भी नहीं होगा, तो आप जेनेटिक जैसा टर्म का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. और वेरिएशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन causes variation. So variation occurs in sexual reproduction. Okay. So this Bateson also given so many more terms, that is about F1 generation, that is first filial generation, F2 generation, that is second filial generation, homozygous, heterozygous, and homologous chromosomes. As you know, these terms they are given by Bateson. All these terms they are given by Bateson. Why he is regarded as a father of animal genetics? Because he applied the conclusion or theories of the Mendel on the animals. That's why Bateson is regarded as father of animal genetics. Because, I repeat, why? Because he applied the conclusions of the Gregor John Mendel on the animals. Actually, Mendel's experiment was performed in 1856 to 1863. After that, he applied his conclusions on the animals. That's why he is regarded as father of animal genetics. Okay. Next one is offspring. Offspring. Okay, offspring is what? Offspring, they are the product of sexual reproduction. Product of sexual reproduction, only sexual reproduction, not of asexual reproduction. Suppose the young ones are forming by the process of asexual mode, then they will not be called as offsprings. Offspring term is always used for the products of sexual reproduction only, or you can say it is always biparental. Mean to say it is always biparental, mean two parents are involved. Okay. Siblings, what are siblings? Offsprings of same parent but at different birth.
और they are the offsprings. Siblings what they are? They are the offsprings. Offsprings ये भी offspring ही है, but of same parent, but at different births. यानी इनकी बर्थ की टाइमिंग अलग अलग है, बाकी पेरेंट्स इनके भी सेम होंगे. पेरेंट दोनों के सेम, ऑफस्प्रिंग के सेम होते हैं, बट उनका टाइमिंग अलग. जैसे कि ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई बहन जो हैं, जो कि ट्विंस नहीं हैं, वो आपके सिबलिंग्स कहलाएंगे. नेक्स्ट इज ट्विंस. व्हाट इज ट्विंस? दे आर आल्सो ऑफस्प्रिंग्स. ट्विंस भी क्या है? ऑफस्प्रिंग ही है, बट सेम पेरेंट के हैं, बट एट सेम बर्थ. यानी कि ये ट्विंस वो हैं जो कि एक साथ पैदा हों, एक ही समय में एक साथ पैदा हों. अब ट्विंस की अगर आप बात करेंगे तो बेसिकली ट्विंस के दो टाइप हैं. कौन कौन से? एक फ्रैटर्नल ट्विन है, फ्रैटर्नल ट्विन. दूसरा है आपका आइडेंटिकल ट्विंस. फ्रैटर्नल ट्विंस को हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं, और इसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस. मोनोजाइगोटिक ट्विंस ये है क्या एक्चुअली? डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब ये है कि जब ओवुलेशन दो हुआ हो. नॉर्मली ह्यूमंस में एक ओवरी एक बार में एक ही एग ओवुलेट करती है. किसी कारणवश, कोई एबनॉर्मेलिटी की वजह से, किसी भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अगर दो एग रिलीज हो गया और दो एग्स सेपरेटली अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है, उस केस में आपके दो जाइगोट्स बनेंगे जो कि आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि दो अलग अलग स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज किया हुआ है. बट इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, one egg is fertilized and after the fertilization the egg divides into two zygotes. Okay, mean to say in the case of identical twins, same fertilized egg yani zygote will divide into two embryos. They will form two embryos. अच्छा, दूसरे डॉक्टर्स लोग काफ़ी पहचानते हैं कि भाई ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस कब होगा, फैटल ट्विंस कब होगा. देखिए नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है डेवलपमेंट, आइडेंटिकल ट्विंस में भी दो प्लेसेंटा डेवलप हो सकता है, फैटर्नल ट्विंस में भी दो प्लेसेंटा डेवलप हो सकता है. तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिकल ट्विंस में एक ही प्लेसेंटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है. दो प्लेसेंटा भी डेवलप हो सकता है, दो एम्नियोटिक कैविटी भी डेवलप हो सकती है. तो ये डॉक्टर्स लोग कभी कभी ये पहचानते हैं कि दो प्लेसेंटा डेवलप है तो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं, फैटर्नल ट्विंस है, लाइक दैट. तो ये दोनों ही केसेस में हो सकता है. लेकिन आप मानिए ये देखिए कि अगर ट्विंस में जैसे कोई लड़का है और लड़की है, जैसे बॉय एंड गर्ल चाइल्ड है, तो वो आपके आइडेंटिकल ट्विंस नहीं हो सकते. आइडेंटिकल ट्विंस की खास बात क्या होती है कि उनके जो जेनेटिक जो डीएनए है वो सेम होंगे. आइडेंटिकल ट्विंस के केस में उनका जो डीएनए है वो सेम होगा. फैटर्नल ट्विंस में एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन करेगा. ओके, सो इसको आप लोग ध्यान देंगे. तो ट्विंस ये भी क्या है? ऑफस्प्रिंग ही हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर. व्हाट आर कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स आर द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर है वही उसका कैरेक्टर है, जो आप इजीली देख सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं. सो व्हाट इज कैरेक्टर? दे आर द फीचर्स ऑफ एनिमल्स, फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, देन कम टू ट्रेट्स. ट्रेट्स क्या है? ये भी फीचर ही हैं. ये भी ट्रेट्स भी आपके क्या है? ये भी फीचर ही है उस इंडिविजुअल के. बट इनकी खास बात क्या है कि ट्रेट्स आर इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स. दे आर इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स. यानी कि ये जो फीचर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं ये इनहेरिटेबल हैं, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होते हैं. जबकि ये फीचर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रांसफर हो सकता है कि ये फीचर आपका ये उसके लाइफ टाइम में अडॉप्ट किया गया हो, लेकिन ये ट्रांसफरेबल ना हो, तो ये फीचर हो गया. लेकिन अगर हम ट्रेट की बात करेंगे, इफ वी यूज द टर्म ट्रेट, इट मीन्स दिस फीचर और दिस कैरेक्टर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट और हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रीवियस टू द प्रेजेंट वन. ओके, सो ट्रेट्स दे आर द इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स. अब कोई भी कैरेक्टर के आपके ट्रेट दो होते हैं, आपने पढ़ रखा है. जैसे मेंडल साहब ने गार्डन पी में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो ट्रेट्स कैरेक्टर्स लिए थे उसके दो ट्रेट थे. जैसे कि आपका एक कैरेक्टर आपने लिया था
एक कैरेक्टर एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। एक कैरेक्टर आपका था क्या, हाइट ऑफ प्लांट। अब हाइट ऑफ प्लांट आपका एक कैरेक्टर है, इसके दो ट्रेट्स थे, क्या था, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो ये दोनों क्या हैं, ट्रेट्स, दे आर दी ट्रेट्स, या आप कह सकते हैं दे आर दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी, ऑफ सेम कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ट्रेट्स की खास बात क्या है, दे आर इनहेरिटेबल एंड कैरेक्टर्स दे नीड नॉट बी इनहेरिटेबल। कोई जरूरी नहीं कि कैरेक्टर्स इनहेरिटेबल हो ही, तो ये इसका अंतर होगा। उसके बाद आप आ जाइए यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर आप लोग सब पढ़े हुए हैं पहले से, मैं जस्ट सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं। आप लोग क्लास 9-10 में पढ़े होंगे कि मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, आपने क्रॉस भी बनाया होगा। मेंडल साहब के समय ये तो टर्म है, दिस टर्म वाज गिवन बाय G.J. मेंडल। मेंडल साहब अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने कब से कब तक किया था, एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया था, इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था 1856 से 1863 के बीच में। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली आप थोड़ा ये ध्यान देंगे, हायरार्की थोड़ा समझेंगे कि जब मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस वक्त न तो कोई जीन जैसा टर्म था और न ही क्रोमोसोम जैसा कोई टर्म था। जीन और क्रोमोसोम टर्म ये मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट के बाद में आया हुआ है, इवन यू कैन से इनके डेथ के बाद ये टर्म लाया गया है। तो उस वक्त अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल साहब को ये नहीं मालूम था कि जीन भी कुछ चीज़ होती है या क्रोमोसोम भी कुछ चीज़ होती है, बट इनको ये मालूम था कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है और जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो भी केमिकल्स या भी जेनेटिक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है, यूनिट है, उस जेनेटिक इनहेरिटेंस की यूनिट को इन्होंने क्या कहा, फैक्टर। फैक्टर इन्होंने कहा, क्या कहा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसीलिए इसको मेंडेलियन फैक्टर भी कहा जाता है, इसीलिए इसको मेंडेलियन फैक्टर भी कहा जाता है। ओके, बाद में यही फैक्टर को जीन टर्म दे दिया गया, बाद में इसी फैक्टर को जीन का नाम दे दिया गया। ठीक है, सो फैक्टर एंड जीन दे आर सेम। फैक्टर टर्म यूज कब हुआ था, मेंडल एक्सपेरिमेंट यूज हुआ था, मेंडल साहब ने किया था, बाद में इसको जो है जोहानसन साइंटिस्ट साहब ने इन्होंने फैक्टर को जीन का टर्म दिया। इज दैट क्लियर? सो इट इज अबाउट द फैक्टर। अच्छा, फैक्टर की बात आप करते हैं तो इसके बाद ठीक तुरंत आता है एलिल्स। इसको भी आप समझिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिल्स क्या है, क्योंकि एलिल्स अगर आपको नहीं समझ में आए तो जेनेटिक्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ में आने वाला है। ठीक है, तो एलिल्स आप समझिए। एलिल्स आप पढ़े हैं, क्या है, दे आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ gene. What are alleles? They are the alternative forms of genes. Okay? अब थोड़ा जीन समझिए। आपको मालूम है कि हमारे बॉडी के हर सेल में एक्सेप्ट गैमेट्स को छोड़ करके सारी सेल में डिप्लॉयड हैं। ओके, डिप्लॉयड यानी कि सोमेटिक सेल्स की अगर आप बात करेंगे तो दे हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 2 यानी कि डिप्लॉयड है, बराबर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 23 पेयर्स में से 23 कहाँ से आते हैं, ये मैटरनल क्रोमोसोम्स होते हैं, और 23 कहाँ से आते हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, हम इनको पेयर्स में बोलते हैं बिकॉज सेल में ये चूंकि जो क्रोमोसोम्स है मैटरनल और पैटर्नल, ये 23 क्रोमोसोम की शेप और साइज का ही एक सेट और मैटरनल साइड में भी है, और ये आपस में आके जुड़ जाते हैं, पास पास चले जाते हैं, इसीलिए हम पेयर्स में कहते हैं। 23 पेयर्स बोला जाता है। तो आप ये समझिए कि फॉर टू कंट्रोल ईच एंड एवरी कैरेक्टर देयर आर 2 जीन्स। सपोज ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये आपका हो गया मैटरनल क्रोमोसोम, ये आपका हो गया पैटर्नल क्रोमोसोम, और आपका ये जीन है। ओके,
ये जीन है, ठीक। तो ये जीन सपोज इट इज फॉर टॉलनेस, दिस इज फॉर ड्वार्फनेस। टॉलनेस और ड्वार्फनेस एक ही कैरेक्टर के दो रूप हैं। कौन सा कैरेक्टर है? हाइट। अभी आप पाइजम सेटाइवम की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ प्लांट, सपोज आपने किया कि आपने हाइट ऑफ प्लांट पाइजम सेटाइवम का केस लिया है, तो ये जो जीन्स हैं जिसका कि लोकस भी सेम, यानी कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही जगह पर लोकेटेड है और ये दोनों जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी हाइट ऑफ द प्लांट। एक जीन आपका ड्वार्फनेस के लिए है, दूसरा जीन आपका टॉलनेस के लिए है, लेकिन द कैरेक्टर इज सेम, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट। एज दीज टू जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम जीन लोकस। अब मैं आपको एलील की बात कर रहा हूं। एलील्स क्या हैं? व्हाट आर एलील्स? द टू जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, यानी कि क्रोमोसोम पे एक ही पोजीशन पे लोकेटेड होते हैं। यानी सपोज यहाँ पे जी आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से ये जीन भी जितने डिस्टेंस पे है, जिस आर्म पे है, उसी आर्म पे उसी डिस्टेंस पे ये वाला जीन भी होगा और ये दोनों जीन्स एक ही कैरेक्टर को यानी हाइट ऑफ प्लांट को कंट्रोल करेंगे, लेकिन उनका कैरेक्टर आपका कॉन्ट्रास्टिंग भी हो सकता है, यानी कि ये टॉल भी हो सकता है, ये भी टॉल हो सकता है, या ये भी ड्वार्फ हो सकता है, या ये टॉल ये ड्वार्फ हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर एक ही आपका होगा, हाइट ऑफ प्लांट। इन दोनों जीन्स को अब क्या कहेंगे? एलील्स। यही दोनों जीन क्या कहलाएगा? एलील्स। सो व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स विच आर कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर, ठीक है। और ये एलील्स हमेशा आपका जो भी एक कैरेक्टर के दो जीन्स हैं जो कि एलील्स होते हैं, एक एलील हमेशा आपको मैटरनल साइड से मिलेगा और दूसरा एलील आपको पैटर्नल साइड से मिलेगा, ओके। यानी कि आप ये कह सकते हैं इन डिप्लॉयड इन ह्यूमंस फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर देयर आर टू जीन्स एंड दीज टू जीन्स व्हेन कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर दे आर कॉल्ड एज एलील्स एंड दीज टू एलील्स विल हैव सेम जीन लोकस। वो सेम जीन लोकस पे भी होना चाहिए, होगा, हमेशा होगा, ओके। तो आप इसको याद रखेंगे। एक चीज और इसमें टर्म आता है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस करके, यहां भी आप समझ लीजिए इसको कि जब ये दोनों जीन आपका सेम उस लोकस पे हैं और अगर ये दोनों एलील सेम है, सपोज कैपिटल टी है, यानी टॉलनेस को रेफर कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कंडीशन कहलाएगा? होमोजाइगस। या ये दोनों हैं तो भी आपका होमोजाइगस। लेकिन अगर इस हेटेरोजाइगस हैं, यानी कि सेम एलील नहीं है, यानी कि एक टॉलनेस का है एक ड्वार्फनेस का है, लाइक दिस, तो ये क्या कहा जाएगा? हेटेरोजाइगस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस, ओके। लेकिन आप याद रखेंगे कि दोनों एलील्स, ये दोनों क्या है? दीज आर एलील्स। ये दोनों एलील्स कहाँ से मिला है? अलग अलग पेरेंट्स से मिला। अगर ये आप मैटरनल से लेंगे तो ये आपका पैटर्नल से आएगा, ठीक है, तभी ये काम करेगा, ओके। नेक्स्ट इज जीन लोकस। जीन लोकस से एक, हालांकि जीन लोकस का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इससे कंसर्न एक क्वेश्चन आपका 2019 नीट में पूछा गया है, उसको भी आप थोड़ा समझेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में वो शायद नहीं है, लेकिन पूछ लिया गया है। आप जानते रहिए क्या था, कैसे था, क्यों था, तो आप कर ले जाएंगे। देखिए, व्हाट इज जीन लोकस? इट इज द लोकेशन और प्लेस या पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर जीन का जो लोकेशन, प्लेस या पोजीशन है, वही आपका जीन लोकस कहलाता है। इसमें एक टर्म आता है लोसाई। लोसाई क्या है? लोसाई सिर्फ जीन लोकस का प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म ऑफ लोकस, ओके। दे आर कॉल्ड एज लोसाई। लोसाई मीन्स जैसे कि कई सारे अगर लोकसेस की आप बात करेंगे तो वो प्लूरल हो गया, देन वी विल कॉल इट एज लोसाई। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, वो ये सिंगुलर है जीन लोकस, दिट इज प्लूरल वन। अब एग्जैक्टली क्या है इसको समझिए आप। अब देखिए कि मैंने आपसे कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर कि एक सपोज जीन एक्स है जिसका कि लोकस क्या है? जिसका जीन लोकस है 3p22.1। ये मैंने कहा कि इसका लोकस है। आप इसको समझिए कि ये क्या बोल रहा है। इस केस में सपोज एक आपका क्रोमोसोम है, ये
suppose this is a chromosome, this is what centromere, ठीक है, and these are two arms. okay, अब यहाँ पे देखिए कि आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन द क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू सो मेनी टाइप्स, और लाइक मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, सबसेंट्रिक, लाइक दैट. Suppose this is the centromere and it is not dividing the chromosomes in equal halves. It means one will be short and one will be long arm. So this is the short arm, and this arm will be called as what? P arm. It will be called as P arm. Petite, petite. It is a French word, petite. Okay. This long arm is called as Q arm. Q arm. Q stands for Q U E U E, यानी कि long, long. These are the French language, and P stands for petite, Q stands for Q. P refers to the short arm of the chromosome, Q refers to the long arm of the chromosome. This question has been asked in NEET 2019, that what is P arm and what is Q arm. Okay. Okay. Now come to the point about the gene locus. Suppose somebody told you that the gene locus of X gene is this. So what you will understand, suppose this is a chromosome, these are the regions, like this. Region number from starting from the centromere to the telomeres, 1 2 3 4, like this, 1 2 3 4 5, like this. Okay. Suppose this, I have told you C3P. Here 3 stands for what? 3 stands for third chromosome. Okay. 3 stands for third chromosome. P stands for P arm. 2 stands for region 2. Then 2 again region stands for subband, band 2. Band 2, and again point 1 stands for subband 2, subband 1, sorry. Okay. How will you demonstrate this? Suppose this is a chromosome, this is short arm is P arm, long arm is Q arm. It has been divided into so many regions starting from the centromere. Starting from the centromere से शुरू करेंगे. पहला nearest one, इधर भी nearest one, 2 2 3 3. As you go on the telomere side of the chromosome, the region will extend up. Suppose this is the region number 2. This is region number 2, like this. So this is the region number 2. Okay, and this region is again divided into bands. This region is again divided into bands. Okay, this is what? This is 1 2 is, they are regions, and these two are bands. These two are bands. बैंड्स का भी नाम कैसे रखेंगे आप? देखिए बैंड में आपका जो डार्क बैंड है ये आपका लाइट, ये आपका जो डार्क बैंड लाइट बैंड यहाँ छोड़ दिया है, यहाँ मैंने जो शेड कर रखा है, शेड कहाँ कर रखा है? सेंट्रोमियर की इस रीजन का ये बैंड सेंट्रोमियर की तरफ से पहले आया हुआ है. सो वी विल नेम इट एज बैंड नंबर 1, and then we will name this band as 2. Okay. So रीजन के दो बैंड हुए, 1 and 2. 1 and 2 किसको बोलेंगे? 1 बैंड कौन सा होगा? जो कि सेंट्रोमियर के करीब है. 2 बैंड किस तरफ है? जो कि सेंट्रोमियर से दूर है. ओके. नाउ दिस 2 बैंड अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू सब बैंड्स, like this. Shady one is again the same process will occur. Shady one is towards the centromere, so we will name it as 1, and the other one is towards the telomere. We will name it as 2. This is the telomere. Telomere means end point of the chromosome. Telomere is what? End point of the chromosome. So again this is the subband. This is the subband. Subband 1, and on the above subband 2. So suppose a gene is locating as 3p22.1. It refers to the 3 stands for chromosome number 3rd, P stands for on the P arm,
PR means short arm. 2 stands for region number 2. Again 2 stands for subband 2. This is subband 2. Then point 1 stands for, sorry, here this 2 stands for band 2. Again third chromosome, P arm 2, second region, second band, point 1 stands for subband 1. Okay, it means the chromosome, the gene we are talking about is located in this region. Okay, this is all about the gene locus. Okay, dear students, we will move some with some more terminologies, then we will move into the deep. I hope you will enjoy, and before starting or before going to deep, you should know about these basic concepts, then you can easily acquire the chapter. Thank you so much.